Next question is the 22nd one. Okay, what is given? Find value of x, y, z. Find value of x, y, z. Okay, what is given? The matrix representation given is. I'm writing down the question. आप लिख लो. This is given. This is into curly bracket. ये पूरा एक bracket है. This is multiplied by a column matrix whose entry is 1, 2, and this is equal to another matrix on the right hand side, which is x minus 3. This is y minus 1, and this entry is 2z. ये एक matrix दिया है. Okay, please note down this question. The first thing what we need to do, students, first we need to solve for this curly bracket. तो क्या होगा? सबसे पहले ये 3 अंदर जाके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होगा. It gets multiplied to all the elements. यहाँ पे ये -4 gets multiplied to all the elements inside the matrix. Therefore, next step after this, ठीक है, ये हो जाएगा. First column will be 6, 0, 6. This will be 0, 6, 6. 3 multiplied to each and every element. प्लस का साइन डालो. यहाँ पे -4 multiplied to each and every element. So this is -4 plus 4 minus 12 minus 4 minus 8 minus 4. ठीक है, -4 multiplied to each and every element of the matrix. This is, इसको कर्ली ब्रैकेट रहने दो फिलहाल आप, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है. This is multiplied to a column matrix 1, 2, and this is equal to the right hand side वाला matrix is x minus 3, y minus 1 and 2z. So first we add them. Let us carry out the addition of these two matrix. इनको ऐड करते हैं. तो 6 plus of -4 is 2. This plus this, -4. This is 4. This is -2. This is -6, and this is +2. ये दोनों matrix addition, ये दोनों का addition is this matrix. This is multiplied to a column matrix, and this is again equal to a column matrix. ये column matrix है. X minus 3 is a single entry. X and -3 ये दो अलग चीज नहीं है. This is a column matrix. X minus 3, y minus 1 and 2z. Now, order wise, you can see the matrix. There are 3 rows and 2 columns. 3 cross 2 है. इसका order क्या है? Anyone tell me order of this matrix? 2 into 1. Yes, 2 into 1, 2 cross 1, 2 rows 1 column. और इसका ऑर्डर है 3 rows and 1 column, 3 cross 1. तो ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर 3 cross 1 आएगा. तो चलो मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स एंड टेल मी द एंट्रीज. Sir, voice is cracking. Okay. Yeah, there might be a connectivity issue, students. I repeat, just multiply these two matrix. Done, sir. Done. Okay, very good. ठीक है, तो रो टू द कॉलम. फर्स्ट रो, अभी कॉलम एक ही है तो सारे रो इसी कॉलम को मल्टीप्लाई होंगे. फर्स्ट रो टू द ओनली कॉलम. तो 2 minus 8, तो ये एंट्री आएगा -6. पिक अप द रो, प्लेस इट ऑन द कॉलम. तो 2 minus 8. ओके, टेल मी द सेकंड एंट्री. चलो बताओ मेरे को सेकंड एंट्री क्या है. 0. यस, इट्स 0. टेल मी द थर्ड एंट्री. -2. Yes, correct, absolutely. -2. Yes, okay, very correct. Good.
सो ऑल ऑफ यूर करेक्ट। तो ये देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है। नाउ दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल। नाउ recollect equality of matrices. I have given you definition earlier. Equality of matrices says that if two matrices are equal, their corresponding elements are same and they are of same order. तो देखो दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वेट होंगे, उससे अपने को एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलेगा। तो राइट डाउन आफ्टर दिस, इसके बाद ऐसा स्टेटमेंट लिखो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ओके, आई जस्ट कंटिन्यू इट ओवर हियर। आफ्टर दिस राइट डाउन बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या मिलेगा? x minus 3 is equal to minus 6. This is corresponding to this. Y minus 1 corresponds to 0 and 2z corresponds to negative 2. So clearly from here x का value is negative 3, y का value is 1 and z का value is minus 1. That's it, problem is over. X, Y, Z we have found out. Got the answer everyone? Okay. Yes, sir. Okay. तो वैसे ही एक सिमिलर क्वेश्चन है 21 वाला, वो आप होमवर्क के लिए करोगे। क्वेश्चन 21 विल बी डन फॉर होमवर्क। Okay, so let's go with next one, question number 23. Okay, now matrix A is available and A square is to be proved. हाँ, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। Now we want to find out A square, मतलब A square को प्रूव करना है। क्वेश्चन आप देख लेना। Now A square, तो A square कैसे मिलेगा? A into A. A square is A into A. Therefore, A square is equal to matrix A. What is matrix A given? Cos alpha sin alpha फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में इट इज माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। दीज आर द फोर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा, अभी साइन कॉस देख के हमें डरना नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वो एग्जैक्टली सेम है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड अहेड। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मैट्रिक्स बाद में आप क्लोज करना। नाउ रो टू द कॉलम, देखो कितने पोजीशंस है, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। तो पहले तो 1 1 आएगा, ए 1 1। तो फर्स्ट रो टू द फर्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने का। अभी आप ध्यान से देखना, फर्स्ट रो टू द फर्स्ट कॉलम, तो cos alpha into cos alpha, so that is nothing but cos square alpha, check this into this। नो डाउट कि बीच में प्लस साइन आएगा, और यहाँ पे देखो साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो दैट इज नथिंग बट माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। प्लीज चेक, फर्स्ट रो को उठाने का, फर्स्ट कॉलम के ऊपर रखने का, वही अपना प्रोसीजर है, कुछ अलग नहीं है। तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, sin alpha into sin alpha is sin square alpha। is the first entry clear to all? ये clear है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अभी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने का, अपने को क्या चाहिए नेक्स्ट? 1 2। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने का, तो फर्स्ट रो को उठाने का, सेकंड कॉलम के ऊपर रखने का। तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कैसे भी लिखो। हाँ, तो नेक्स्ट एंट्री है cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, प्लस का साइन तो बाय डिफॉल्ट आता है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, दैट्स नथिंग बट साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब अगर आप देखोगे तो दोनों चीजें सेम है, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा इज सेम एज साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, मैट्रिक्स सिंबल, ये फर्स्ट रो का 1 1 1 1 1 2 हो गया। अभी 2 1 2 2,
नाउ वी वांट 2 1 2 2। अभी सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने का, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने का, तो 2 1 2 2 वाला पोजीशन आएगा। तो सेकेंड रो टू द फर्स्ट कॉलम, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दिस इज माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो इसको भी रीअरेंज कर लिख लेते हैं, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इट्स सेम थिंग, a इंटू बी, बी इंटू ए, ट्रिग्नोमेट्री में भी चलेगा। नाउ दिस इंटू दिस, तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos alpha into cos alpha is nothing but cos square alpha। तो ये सारे positions मिल गए अपने को, 1 1 1 2 2 1 2 2, all these positions we have obtained। Now we'll have to recollect the trigonometric formulas। अब इसमें थोड़ा मैं आपको rearrange करके लिख के बता देता हूँ। Now a square is further equal to, now cos square alpha minus sin square alpha, let it remain same। अभी आपके रेफरेंस के लिए मैं स्टेप इंक्रीज कर रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। cos square alpha minus sin square alpha remaining same, sin alpha cos alpha plus sin alpha cos alpha is nothing but 2 times of sin alpha cos alpha। ये प्लस ये, दे आर लाइक टर्म्स, तो 2 टाइम्स हो गया, ये भी ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 sin alpha cos alpha, और इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो दिस इज नथिंग बट एक्चुअली cos square alpha minus sin square alpha। चेक, कुछ नहीं किया, सिर्फ रीअरेंज किया है, ये टर्म को सेम रखा, ये दोनों ऐड हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, इसको रीअरेंज करके लिखा। नाउ रिकलेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज इसके बाद। अच्छा, कोई बता सकता है मेरे को cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट? cos 2 theta. Cos 2 theta. वेरी गुड, परफेक्ट, cos 2 थीटा, केशव ऋग्वेदा, वेरी गुड, cos 2 थीटा, ठीक है ना। एंड 2 sin अल्फा, आई मीन टू से 2 sin थीटा इनटू cos थीटा क्या होता है? Sin 2 Sin theta. 2 theta. वेरी गुड, परफेक्ट। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा, ठीक है ना। अभी आप यहाँ पे आके बोल नहीं सकते कि सर मेरे को फॉर्मूले याद नहीं है या मैं भूल गया। नो एक्सक्यूज इज अलाउड, को हमें याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल्स, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा अपना cos 2 अल्फा, ये हो जाएगा sin 2 अल्फा, ये हो जाएगा माइनस sin 2 अल्फा हो जाएगा ये, दिस इज माइनस sin 2 अल्फा, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम नथिंग बट cos 2 अल्फा। टेक्स्ट बुक में आप क्वेश्चन जरा चेक कर लो, दिस इज द फाइनल आंसर, ये प्रूव कर दिया हमने, hence proved। Please cross check the question in your textbook, this is what we had to prove, ये हमें प्रूव करना था, and that we have done by using matrix multiplication। ठीक है, तो I hope you must have got the answer already। Okay, so let's continue, let's move on to question number 19 students। We want to find out the value of k, matrix A is given, मैट्रिक्स ए दिया है, सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं डायरेक्टली, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन राइटिंग डाउन द क्वेश्चन। नाउ लेट अस फर्स्ट कंसीडर द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो द मैट्रिक्स इक्वेशन इज a स्क्वायर इज इक्वल टू k into a minus 2 into i। This is called as a matrix equation, I have told you already earlier also, a square equal to k into a minus 2i। अब a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो हमें मालूम है, a स्क्वायर मीन्स व्हाट, इट इज a into a, this is k into i and this is 2 into i। now let's multiply matrix a with matrix a। तो अब मैं लिखता हूँ मैट्रिक्स a दिया है 3 4 in the first column, -2 in the second column, ठीक है। मैट्रिक्स a multiplied by matrix A equal to k into a,
k into matrix A, 3 4 -2 -2 minus 2 times of identity matrix which is 1 0 0 1. ठीक है, दिस इज गिवन टू अस. अभी ये दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स एंड राइट डाउन व्हाट यू गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग देम. आप करो कंटिन्यू. यहाँ पे क्या होगा, आई एम गाइडिंग यू. ये k जाके अंदर सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स मिलेगा, प्लस ये -2 भी अंदर चला जाएगा और सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स मिलेगा हमें. तो जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली. तो आप पहले राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो, फिर एलएचएस करो, बट दोनों साइड लिखना है, दे आर इक्वल ऑलरेडी. तो फर्स्ट यू मल्टीप्लाई देम, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करो. So let's do it. First row to the first column, 9 minus 8. 9 minus 8, 1. First row to the second column, -6. -6 plus 4, -2. -6 plus 4, -2. Then second row to the first column. I can use a different color. Second row to the first column and second row to the second column. अभी मेरे को ये second row के एंट्रीज फटाफट बताओ. 2 1 and 2 2. When you do it, just tell me the entries of the second row. 4 and -4. Okay, 4 and -4. Yes, correct. 12 minus 8. Yes, 4. And yes, correct, -4. Perfect. 4 -4. अभी ये k अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज 3k, दिस इज -2k, दिस इज 4k, दिस इज -2k, और ये -2 अंदर गया, तो ये -2 0 0 -2. अब राइट हैंड साइड पे ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे. लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स सेम रहेगा, 1 -2 4 -4. दिस इज इक्वल टू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे इसके. दिस इज 3k -2, दिस इज -2k, दिस इज 4k, and this is -2k -2. Addition of these two matrix corresponding elements, this plus this, this plus this entry plus this entry, and this plus this. ये matrix मिलेगा. Now, can anyone tell me what should be done next? क्या करेंगे? By equality of matrices. Very good. By equality of matrices. अच्छा, इसमें by equality of matrices में सारे elements लिखने की जरूरत नहीं है. Equate any one. I'll tell you. चलो लिखो. Very good. Correct लिखो. By equality. ये स्टेटमेंट कंपल्सरी है एग्जाम में. बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. अगर ये आप नहीं लिखोगे तो यू मे लूज हाफ मार्क, यू मे टेंड टू लूज हाफ मार्क. नाउ यू इक्वेट एनी पोजीशन, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, या तो इसको इसके साथ, या तो इसको इसके साथ. जो इजी है, जो जल्दी आंसर देगा, उसको इक्वेट करने का. किसी को भी किसी के साथ इक्वेट करो. सेम पोजीशंस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दिस विद दिस, or this with this, or this with this, or this with this, either. So let's equate this with this. तो orally दिखेगा आपको 4k is equal to 4, तो k is 1. प्रॉब्लम ओवर. इसको इसके साथ इक्वेट करो, तो 4k is equal to 4, तो k is equal to 1. प्रॉब्लम इज ओवर. कोई भी एंट्री उठा, आप k का वैल्यू 1 ही मिलेगा. इसको इसके साथ भी इक्वेट करोगे तो k का वैल्यू 1 मिलेगा. इसको इसके साथ इक्वेट करोगे तो भी k का वैल्यू 1 मिलेगा. इसको इसके साथ इक्वेट करोगे तो भी k का वैल्यू 1 मिलेगा. तो जो इजी है उसको इक्वेट करने का, खत्म. दैट्स इट. आई होप दिस इज अंडरस्टूड एंड गॉट द आंसर एवरीवन. Yes, sir. Yes. Okay. Now, see, in this question we have already got the value of k, but यही same representation ना, आपको ये question ऐसा भी आ सकता है.
just give me 1 minute, I'll explain you how. Instead of giving this a square minus ka minus 2i na, he can give you the question this way ki this condition can be written as a square minus ka plus 2i equal to null matrix. ऐसा भी दे सकता है. देखो ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है, instead of giving this matrix equation, he can give us this matrix equation. This and this, they are exactly same. आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. आपने ये नहीं बोलना चाहिए सर ने हमको ये तो सिखाया पर ये कैसे करने का नहीं बताया. This and this, it's one and the same thing. ये सारे टर्म्स इधर शिफ्ट हो गए. इसका एक ही स्पेशलिटी है कि ये जो भी वर्किंग आप लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे, राइट हैंड साइड में दिस null matrix will be written as 0 0 0 0. सारे एंट्रीज 0 लिखने पड़ेंगे. Okay, am I clear with this everyone? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जो क्वेश्चन 13 है जो आपको होमवर्क सेक्शन में करना है उसमें ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया है. तो कुछ नहीं, ये सारे टर्म्स अगर इधर आ गए तो नल मैट्रिक्स बचेगा. नाउ नल मैट्रिक्स लिखना जरूरी है. द रीजन आई विल टेल यू ना क्यों जरूरी है, वो रीजन में मैं आपको बता देता हूँ. एक मिनट. जब भी जैसा अभी ये नल मैट्रिक्स नहीं लिखा है, नाउ सपोज इफ द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस के टर्म्स में आएगा. अगर मैं इसको नल मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करूंगा तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ कंपेयर कर सकता हूं, बट मैं मैट्रिक्स को नंबर के साथ नहीं कंपेयर कर सकता. से फॉर एग्जांपल, जस्ट एन रैंडम एग्जांपल आई एम टेकिंग. सपोज यहाँ पे 2k 4k, यहाँ पे से k माइनस 1 और यहाँ पे k माइनस 1 ऐसा कुछ दिया हुआ है. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू सिर्फ 0 लिखा है. तो मैं मैट्रिक्स को नंबर के साथ कंपेयर नहीं कर सकता. इक्वालिटी किसका हो सकता है? मैट्रिक्स का इक्वालिटी मैट्रिक्स के साथ हो सकता है. आई कैन कंपेयर अ मैट्रिक्स विद अ मैट्रिक्स, बट आई कैन नॉट कंपेयर अ मैट्रिक्स विद अ नंबर. तो इसीलिए यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको 100% मैट्रिक्स मिलेगा ही, एंड राइट हैंड साइड में दिस नल मैट्रिक्स शुड बी रिटन इन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स एंड देन यू इक्वेट. तो भी ये प्रॉब्लम k का वैल्यू 1 ही रहेगा. ठीक है ना? तो आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू एवरीवन, बिकॉज क्वेश्चन 13 में वो ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा है तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया. ओके, एनी डाउट्स और कंफ्यूजन यू कैन हैव, इफ यू आर हैविंग यू कैन आस्क. कुछ माइंड में अगर आपको चल रहा होगा पूछना है तो आप पूछ लो, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नो? ओके, चलो. So let's move on to the next one, students. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? I'll tell you. Give me a minute. Yes, Rigveda. You can bring all the matrix on one side, Rigveda. Once you do this matrix, ये सारे matrix एक तरफ आ सकते हैं, and that will be equal to null matrix. Can be done. Yes. तो चलो 11th वाला क्वेश्चन करते हैं. Now matrix A and B given and we want to find out alpha. अभी मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ पूरा, क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है. मैट्रिक्स A and B is available. Find alpha. So we consider the matrix equation. The matrix equation is A square equals to B. Now A square is A into A. So A into A equal to B. This is given. I'll write down. Matrix A is alpha 0 1 1 row wise, alpha 0 1 1, and matrix B is 1 0 2 1. Continue doing and find out the value of alpha. हो गया कि please let me know. 1. Done, sir. Done? Very good, very good. Okay, tell me, someone tell me what is value of alpha? 1. 1. 1. Okay, chalo, let's see.
अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं रो टू द कॉलम, अल्फा इंटू अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम ये एंट्री आ गया, फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम, तो ये 0 है, ये 0 है, तो ये भी 0 आएगा। नाउ सेकेंड रो टू द फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1, एंड दिस रो टू दिस कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 और ये आएगा 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑन द अदर साइड इज 1 0 2 1। Check, has everyone got this? Both the sides of equality? Yes, sir. Okay. बस अभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आप अप्लाई करो, फर्स्ट रो टू द फर्स्ट कॉलम, ये एंट्री आ गया। ठीक है, ये सब हो गया। नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। ये देखो, ये 0 है तो ये भी 0, ये 1 है तो ये भी 1 है, तो दिस एंट्री इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंट्री इज इक्वल टू दिस। तो लेट्स इक्वेट आइदर ऑफ देम। अभी इसको हम इसके साथ इक्वेट करते हैं, तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मिलेगा, तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो अल्फा इज 1 मिलेगा। अल्फा इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर। Check, have you got this everyone? Yes, Remaining sir. student? Yeah. Okay. Okay, now वैसे अगर आप देखोगे तो इससे अल्फा का वैल्यू 1 आता है, बट सपोज अगर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 लिया, सपोज नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर मैंने इसको इसके साथ इक्वेट किया तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है, तो इन दिस केस तो अल्फा के दो वैल्यू होने चाहिए, अल्फा के दो वैल्यू होने चाहिए प्लस माइनस 1। ठीक है, तो why only alpha is equal to 1 we should write down, why not -1? क्योंकि अगर ये कंडीशन में इसको इसके साथ इक्वेट करता हूं तो वैसे अल्फा के दो वैल्यूज निकलेंगे, पर क्योंकि अल्फा के दो अलग अलग वैल्यूज तो हो नहीं सकते, क्योंकि इधर अल्फा 1 मिला तो इधर प्लस माइनस 1 लिखेंगे तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू -1 इज डिस्कार्डेड ओवर हियर, बट हाउ डू वी कम टू नो दैट दिस -1 इज डिस्कार्डेड एंड नॉट एक्सेप्टेड? कैसे मालूम पड़ेगा आपको? तो सपोज अगर अल्फा का वैल्यू -1 लिया, सपोज अगर अल्फा का वैल्यू -1 मान के चले कि चलो -1 आता भी है, तो चलो लेट्स मल्टीप्लाई, इधर अल्फा का वैल्यू डाल के देखते हैं क्या होता है। ओके, डू नॉट राइट डाउन दिस पार्ट। तो सपोज अगर हम मान के चले कि अल्फा का वैल्यू -1 आ रहा है, या -1 एज्यूम कर लिया, तो -1 1, ठीक है, 0 1, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय -1 1 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को मैट्रिक्स भी मिलना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वी शुड गेट मैट्रिक्स भी। तो चेक, ये देखो -1 इंटू 1, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज -1 इंटू 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 0, तो दिस एंट्री इज गोइंग टू बिकम 1। नाउ दिस रो टू दिस कॉलम, तो ये 0 और ये भी 0 आ रहा है, चलो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये हो गया -1 + 1, ये एंट्री 0 आ रहा है, -1 + 1 ये एंट्री 0 आ रहा है, बट मैट्रिक्स बी का जो राइट हैंड साइड है वो 2 दिया है, मैट्रिक्स बी का जो राइट हैंड साइड है वो एंट्री 2 है और यहाँ पे 0 मिल रहा है, मतलब ये कहीं पे हमें ये मालूम है कि ये अल्फा का वैल्यू -1 नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई वी डोंट कंसिडर द -1 वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा का पॉजिटिव वाला वैल्यू एक्सेप्ट होगा। एम आई क्लियर विद दिस एक्सप्लेनेशन एवरीवन? Yes, sir. है ना? -1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हो सकता है कि अगर मैंने इसको सॉल्व किया है, तो एज आई सेड लास्ट प्रॉब्लम में, किसी भी एक एंट्री को सॉल्व करो, तो सपोज अगर आपने अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 लिया, तो देन द क्वेश्चन अराइजेस कि अल्फा इज +-1, करेक्ट है, कंसेप्ट वाइज तो अल्फा +-1 ही होना चाहिए। तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा प्लस वाला एक्सेप्टेबल है कि माइनस वाला एक्सेप्टेबल है? यहाँ से नहीं मालूम पड़ेगा, -1 डाल के देखा तो मालूम पड़ा, अरे हाँ -1 वाला तो गड़बड़ है। तो फिर क्या किया, अल्फा +1 इक्वल टू 2, तो फिर अल्फा का वैल्यू 1 मिला, तो दैट इज हाउ यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर। तो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कौन से वैल्यू से आपको क्या चीज मिलेगी। तो अल्फा का वैल्यू इज +1।
If anyone has any confusion, you can ask. I hope this is understood to everyone. Still, if you have any confusion, you can ask.